Gxy, and both f and g are function of x and y of the same degree. Then this is known as homogeneous. That means this is again, if it is written like this, x square minus y square by xy. In x and y, this is of second degree. This is second degree. Therefore, this is homogeneous form. That you know, y putting y equal to vx. You know this to solve this. Y equal to vx. You put y equal to vx there, and we differentiate this dy by dx equal to v plus x dv by dx, and that we substitute here, then we get this is solvable, and we separate the variables in x and v and integrate, we get the solution, and lastly we substitute the value of v from here, that means y by x, that is known as solution of homogeneous differential equation of first order first degree. You know this method, this in intermediate, therefore this is yes sir, yes sir, in class syllabus. I think this is correct. Yes, sir. Now here we'll start from linear differential equation, which is Sir, on this slide. slide change कर दीजिए, मिटाइए मत. What? Sir, they are saying that do not rub, just slide the PPT. So the guy wanna say, don't rub the board. इरेज नहीं कीजिए सर, इरेज नहीं कीजिए, स्लाइड कर दीजिए उसको. स्लाइड चेंज कर दीजिए सर. स्लाइड चेंज कर दीजिए सर, हो जाएगा. और सर सर हिंदी में पढ़ाइए सर, हिंदी में हिंदी में ही उत्तर है सर. अच्छा हिंदी में देखो, दिस इज dy by dx plus p is function of x into y, and this is some function of x only. Then this is known as linear in y. This is linear in y. If we write this differential equation like this, suppose dx by dy, and then this is p will be function of y into x, and here this is function of y. So this is known as, this is linear in x. Here x is the dependent variable, y is the independent variable. So this is, if we write this differential equation this type, dy by dx plus function, any function of x here into y, and here function of x, यहाँ x का केवल फंक्शन होगा, दूसरा y का कोई टर्म नहीं रहेगा, ओनली फंक्शन ऑफ x रहेगा. यहाँ फंक्शन ऑफ y रहेगा, यहाँ फंक्शन ऑफ y रहेगा, लेकिन यहाँ पर x से मल्टीप्लाई होगा, केवल x रहेगा, x स्क्वायर वगैरह नहीं रहेगा, और यहाँ dx by dy. So this is linear in x, this is linear in y. Okay. Yes, समझ रहे हो? Now to solve this differential equation, we find particular integral. नहीं, particular integral. नहीं, integrating factor. We first here find part. Solution of suppose that dy by dx plus p function of x into y function of x. Solution of this, so we find first find integrating factor. Integrating factor. Integrating factor. This was referred to IF. IF is here, and this is nothing. E to the power
exponential of function of x dx, and we write this integrating factor e function of x into px and integrating this. सर उसका इंटीग्रेशन होगा सर, साइन होगा सर, ई टू इंटीग्रल साइन होगा सर, e का पावर इंटीग्रल px dx ये दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ना, ये No, sir. सर पीएक्स का का साइन होगा सर, इंटीग्रेशन का साइन होगा सर, ऊपर से इंटीग्रेशन होगा इंटीग्रेशन ऑफ px dx होगा सर। हो गया अरे चुप रहो सब, बस कर। इंटीग्रेट करेंगे सिंपल आपका इंटीग्रेटिंग, नॉट राइट एनी कांस्टेंट। पीएक्स का खाली इंटीग्रेशन होगा ना सर, इंटीग्रेशन होगा भाई कोई एक जन बोल टू द पावर इंटीग्रल px dx, एक बोल सर जो लिखे वही सही है, पीडीएफ इंटीग्रेशन ऑफ ex ये होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर विदाउट एनी कांस्टेंट ना, ये करेक्ट है। Suppose here this means integrate and multiply this, suppose this is 1 multiplying 1 by if and integrating find solution होता है if into y and this is equal to integration of x into if dx plus some constant c. You have to remember this, एक तो याद रखना है। First we find the integrating factor of that. This is nothing, integration of px and that exponential of that. Multiplying, if we multiply this 1 by this if and integrating, we get this form. If means we have to write this if. Since this is linear in y, ये y में linear है तो y लिखेंगे। Here right hand side में जो x का फंक्शन दिया हुआ है, उस x के फंक्शन को लिखेंगे, उसमें if से मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे, लास्ट में कांस्टेंट लिखेंगे। Do follow? Now, suppose we take an example. फिर मिटा दिए। चलो कोई dy by plus e function of y yes y equal to something x. सर नोट्स दे दीजिएगा गूगल क्लासरूम में, ऐसे समझ नहीं आ रहा। Find the और का कुछ नहीं है भाई, तो नोट सेंड कर दीजिएगा गूगल क्लासरूम में। कौन बजा रहा, बंद करो ना। कौन है भाई, काहे कर रहा है, काहे स्मार्ट बन रहा है भाई, कौन कर रहा है भाई, कोई ना कोई आ ही जाता है बीआईटी के नाम से। भी कर रहा है यार, बंद करो मैम म्यूट ऑल मैम। अबे काहे भाई, काहे मन का तुम्हारा परिंदा इतना उछाल मार रहा है, थोड़ा कंट्रोल करो। मत बजाओ भाई प्लीज। हाँ, काहे तुम्हारा मन का परिंदा इतना उछाल मार रहा है। Excuse me, सर सबको म्यूट कर दीजिए ना प्लीज। सर को नहीं आता है। फिर डाउट कैसे पूछेंगे अगर म्यूट कर देंगे तो, घनश्याम सर जैसा हो जाएगा ना। दिएगा तो फायदा उठा लेना। बंद करना यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई रे गाहे। लीनियर डिफरेंशियल, गजब टोपीबाज आदमी है यार। ये देख रहे हो ना, दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यस सर दिख रहा है। यू सी दिस, आप देख रहे हैं इसको? देख रहे हैं सर, देख रहे हैं। यस सर, दिख रहा है सर, बस दिख ही रहा है। दिस इज लीनियर, धुंधला धुंधला दिख रहा है सर, दिख रहा, सुनाई नहीं दे रहा। लीनियर है
सर आवाज ही नहीं आ रहा आपका। ये तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का है, इसलिए यहाँ जो डेरिवेटिव है y dy by dx, यहाँ सम फंक्शन ऑफ x है, अच्छा यूट्यूब से देख लेते हैं। हेलो y है और इधर x का फंक्शन है। थंडरिंग जैसा हो रहा है सर, थंडरिंग जैसा हो रहा है, बिजली कड़कने जैसा दिखाई पहले दे रहा है, सुनाई बाद में डी दे रहा बाई बाई डी एक्स होगा। क्या सर सबको म्यूट कर दीजिए ना सर। यस सर। dy by चुप रहेगा सर। डी एक्स स्क्वायर होगा जो यही लिखो, ज्यादा समझ में नहीं आएगा। भाई सर वहाँ डब्लू लिखे आप सर। यूनिफॉर्म में। यस सर। एक्स ही है भाई, एक्स। y लिखे हैं सर, क्या हो गया x स्क्वायर हो गया। गाना ही सुनना है तो गाना ही सुन लो। dx होगा ना, रे 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 मारेंगे ना रे, ऐसा मार घर तुम भर्ती नहीं लेगा बोल रहे। this is equal to what? x square by 2 होगा ना, बोलो। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। सही है सर। ठीक है चलिए। ठीक है सर। समझ में नहीं आ रहा है, चलाइए। आ रहा है, सब सही है। ये भी ठीक है सर। सही है। सर बस नोट्स दे दीजिएगा। सर एक बार फिर से सर बता दीजिए ना सर। नोट्स क्या होगा ये सर, आप सब में सब समझना है ये x फंक्शन ऑफ x हो गया, यहाँ x कुछ सुनाई नहीं दे रहा। जब तक सर सब एक बार म्यूट करो ना, क्लास नहीं होगा। सर प्लीज म्यूट कुछ नहीं देगा। सर सबको म्यूट कर दीजिए। सब म्यूट कर ले भाई, प्लीज कर लो ना यार। सब लोग आप अपना म्यूट कर दीजिए, म्यूट कीजिए। आप कर दीजिए। आप कीजिए सर सबको। सर एक बार सर फिर से बता दीजिए ना सर। सर आप सबको म्यूट ऑल कर दीजिए, हम म्यूट करते हैं। सबको म्यूट करिए सर। मत कीजिएगा सर, सबको हम लोग को सर सबको म्यूट कर दीजिए। एकेडमी के इंचार्ज को फोन लगा के रिपोर्ट कर दो। सर आप मैम को बोलिए वो म्यूट कर देंगे। सर अपना मत कर दे रहे हैं, हो गया। सर सबको म्यूट कर दीजिए। म्यूट ऑल कर दीजिए। नहीं हुआ सर। नहीं हुआ। मैम को बुलाइए। मैम को बोल दीजिए सर, वो कर देंगे। अपने अपने सब म्यूट कर लो ना भाई। तो भाई आप अपना म्यूट कीजिए ना, आप तो अपना म्यूट कर दीजिए। यस सर। सर कोई नहीं सुनता, बहुत हरामी है सर। कोई नहीं सुन रहा है सर। सामाजिक तत्व इसमें घुस गया है सर। म्यूट हुआ नहीं हुआ ये? नहीं सर। नहीं हुआ सर। नहीं हुआ सर। सब बदमाशी कर रहा है सर। सर एक बार साला स्लाइड से दिखा दीजिए ना, छूट गया था सर, लेट हो गया। आईटी खुलवाइए जल्दी। भाई कैंसिल सर, कैंसिल। सर खुद तो पढ़ नहीं रहा है सर, हम लोग को भी नहीं पढ़ने दे रहा है। सर स्लाइड से नहीं लिख रहे भाई, सर मिटा दे रहे हैं। हाँ बोला भाई सर। नहीं कनेक्ट हो पाए थे। छोड़िए सर, मत पढ़ाइए। माथा दर्द दे रहा है सर, छोड़ दीजिए। तो ऑफलाइन पढ़ाइए, ऑफलाइन। सर कॉलेज कब बुला रहे हैं? कॉलेज खुलने का कुछ चांस है? भाई 1 तारीख का जो न्यूज आया वो क्या सही है? 1 तारीख से खुलेगा। हेमंत सोरेन बोले पढ़ने दो ना। आईएफ पढ़ने दो भाई को। इतना सीरियस काय हो रहा है? ये भाई काहे मजाक कर रहा है? शांत रहो थोड़ा देर। इनटू आईएफ पढ़ने दो भाई सबको प्लीज। ये हुआ तुम लोग जीआईटी मिलो मिलते हैं। y into if exponential of सेकेंड ईयर का तो खुल रहा है। and this is equal to f x का क्या है x square सर लगे हुए। e to the power सर का आवाज नहीं जा रहा क्या? square by अरे भाई शांत रह ना थोड़ा सा। है ना। अब इसको सर ये फिर से रिपीट कीजिएगा एक बार। अरे भाई शांत रहो। x स्क्वायर लिखे हैं वहां x क्यूब कर दो, जहां x स्क्वायर लिखे हैं ना। पीछे वाला स्लाइड एक बार दिखाइएगा। नहीं है सर क्लास x क्यूब
जिससे y इंटीग्रेट नहीं होगा, दोनों पावर 4 हो जा रहा है, x क्यूब कर दीजिए, तब यहाँ x की जगह पर x क्यूब हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा, अदरवाइज इंटीग्रेट नहीं होगा। मैं अपने इससे लिख दिया था। ये सर, अरे यार कौन आ जा रहा है? बजा रहा है भाई। अरे मोटर्स कौन है यार? आदिवासी आ गया सर। अबे टेस्ला का गाड़ी कभी नहीं देखा होगा। सर आपको सुनाई जब नहीं दे कर रहा है यार। गाना बजा रहा तो यहाँ x क्यूब हुआ, अब इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे बोलो, हाथ से। कैसे इंटीग्रेट करोगे? आइलैंड डॉट स्क्वायर बाय 2 को टी मान लीजिए। पहले आपको करना होगा x स्क्वायर बाय 2 को टी मान लीजिए। x स्क्वायर u into v here we get 2x dx equal to dt, नहीं x dx, आप इसको पुट कर दीजिए यहाँ, तो this is equal to what, इंटीग्रेशन x स्क्वायर x स्क्वायर को भी लिखिएगा, x dx मिलकर कितना होगा, dt by 2 होगा, e to the power रूट 2 into x dt। देखो यहाँ इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर है यहाँ, x स्क्वायर के बदले t लिख देंगे, एक x इसमें से होगा और dx मिला कर सर x स्क्वायर को आप t माने और x क्यूब की जगह t लिख दीजिए। dx में निकल गया। एक x वाला x में दिया है ना, मेरा कुछ समझ और यहाँ पर जो दिया हुआ है x स्क्वायर, उसके बदले t लिखोगे, नहीं बिल्कुल सर, x स्क्वायर है वहाँ t लिखोगे तो क्या आएगा, dt by 2। सर सही है, एकदम सही है सर। एकदम सही सर, आगे बढ़िए ना। हाँ सर चलिए, ठीक है सर, समझ गए सर। अब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं आता, सर वहाँ पे x स्क्वायर नाम बदल के गाना चला। जिंदगी में नहीं मानता। इसको यहाँ भक्ति जाग गया भाई। थिएटर होता। सब आदिवासी घुस गया। हम अरविंद सर को टेस्ट कर देंगे, तुम लोग मतलब कौन है यार दुबली? चीफ कोऑर्डिनेटर को रिपोर्ट करो, कोऑर्डिनेटर को रिपोर्ट करो। ट्रेविस हेड कौन है भाई? जाओ ना शांति से। इसको पढ़ना नहीं, निकल जाओ, बदमाशी मत किया करो यहाँ पे। देखो ये आएगा, अबे कुछ लोग बहुत आदिवासी क्या कर रहा है बे? वो लोग भी अच्छा ही कम्युनिटी है। यस सर। यस सर। आदिवासी से क्या मतलब है जी? तुम कौन चीज हो? बोलो सर ऐसे ही बोल रहा है सब ना, हैं? तुम लोग को तमीज ऐसे ही नहीं बोल रहा है। चुतिया है कब है? करोगे, कहीं कुछ करोगे, कहीं कुछ करोगे। पढ़ने आया है, एडमिशन लिया है तो पढ़ेगा नहीं, उसको नहीं आएगा तो पूछेगा। अभी तो ऑनलाइन चल रहा है, तो ऑनलाइन का फर्स्ट डे में ऐसे ही आ गया, मुझे मालूम नहीं था क्या पढ़ाना है, तो मैं तुमको बता रहा हूँ क्वेश्चन पढ़ो, कल से पढ़ाएंगे और फर्स्ट डे पढ़ा देंगे तुमको जो जानकारी होगा। पढ़ो, कॉलेज कब खुलेगा? करो बाई पार्ट्स। सर आप ठीक पढ़ा रहे हैं सर, लेकिन बीच में एक लड़का बार गाना बजा दे रहा है। सर आप ठीक पढ़ा रहे हैं, बीच में एक लड़का बार गाना बजा दे रहा है। गाना बजाते रहता है। इसको बाई पार्ट्स करना है ना? यस सर। सर कर लिए, हो गया इंटीग्रेट। इंटीग्रेट कर सर तो फर्क ही नहीं पड़ता है। क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन माइनस के। यस सर। माइनस ना सर, e to the power t by 2 एक्सपोनेंशियल ऑफ t by 1 by 2 माइनस होगा सर बीच में ना वहाँ पे। सर वहाँ पे माइनस होगा, माइनस होगा सर एक्स स्क्वायर माइनस 2 से माइनस है, फॉर्मूला में माइनस है सर। नहीं सुन रहे माइनस होगा सर। सर अपना सुनना है यार। भाई अब यहाँ पुट कर दीजिए भाई का, समझ गया ना, काहे इतना टेंशन। तो वैल्यू ऑफ t क्या पुट कर चलिए, ये पुट कर एक्स स्क्वायर। सर वो हाफ पूरे में मल्टीप्लाई होगा ना, और बीच में नेगेटिव आएगा। हाफ बीच में नेगेटिव आएगा, और वो हाफ जो है बाहर आप जो
एक्स स्क्वायर बाई यस सर यस सर को लेके अरे हम लोग बोल टी चुके माने है हैं। ना, तो जिसका डिफरेंशिएट करके हाफ आया था वो तो पूरे में मल्टीप्लाई होगा और बीच में माइनस आएगा। 2 हो जाएगा। और सर 2 कीजिए उसको, ये माइनस होगा, ये सर उसको 2 कीजिए। 2 नीचे में खैर सर नीचे 4 को 2 कीजिए। जानते हो ना यार, आगे बढ़ना। कहाँ से आ गया यार उससे? रहने दो। and this is equal to y and this is equal to यहाँ पर पुट कर दो t, ये t था ना जी, तो यहाँ पे y into if x square by t, t into t के जगह पर पुट कर दो x square, फिर यहाँ पुट कर दो x square by 2 minus 4 e to the power x square by 2 plus c, यही होगा सॉल्यूशन। मींस बाय पार्ट्स करना है, टू फंक्शंस का प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो एक फर्स्ट फंक्शन होगा, एक सेकंड फंक्शन होगा, उसका रूल जानते हो सर 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 4 की जगह 2 होगा वहाँ। यहाँ पर सर यहाँ यस सर, Divided by क्योंकि 1 by 2 से वो भी मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा ना। 2 आएगा, ये 2 पर जाएगा, दोबारा इंटीग्रेट करेंगे नहीं सर, जो कॉमन सर मल्टीप्लिकेशन 1 by 2 कॉमन था ना। है ना, इसका b जो इंटीग्रल पार्ट आएगा उसको फिर b को इंटीग्रेट करके दोबारा इंटीग्रेट करेंगे ना। नहीं सर वो नहीं कॉमन मल्टीप्लाई जो किए बाहर से कॉमन मल्टीप्लाई जो था सबसे सबसे ऊपर में कॉमन मल्टीप्लाई। इधर सर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। जो टी लिए थे उसको डिफरेंशिएट करने के बाद जो वो हाफ आया था वो तो पूरे में मल्टीप्लाई होगा ना। हाँ तो वो आप उसमें मल्टीप्लाई किए नहीं, आप तो डिवाइड ऐसा कीजिए, खुद से सब कोई कर लीजिए सर। कितना बोलेगा सर, कंफ्यूज हो जाएंगे। फंक्शन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन है, बाय पार्ट्स करना है, तो क्या लिखते हैं इसको, मान लो फर्स्ट फंक्शन। नहीं सर बाई पार्ट्स से नहीं, हेलो सर बाय पार्ट्स के बारे में नहीं बोल रहे हैं। सब तेज बैठल है यहाँ पे, तेज बनेगा साला। सही कर लो ना। काहे कर रहा यार, सब बनने दो ना। खुद ही कर लो ना। तुम ही कर लो, जा नाटक मत। हेलो सुनाई दे रहा? हेलो सुनाई दे रहा? मत करो ना यार, गजब कर रहा है यार, तुम लोग मत करना भाई। चुप रहो ना। इससे बढ़िया तो आर्ट्स का स्टूडेंट होता है। ये आया तो आएगा, दोनों को इंटीग्रेट करेंगे फिर उसके बाद तब ना लिखेंगे, तो 1 by 2 तो आएगा। ये क्या पढ़ा रहा है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा, सब पढ़ा हुआ है भाई। dy by dx प्लस पहले सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन अरे भाग यार। dy by dx प्लस I into क्या कर रहा है? क्या बना रहा है यार ये लोग। करना क्या चाहते हैं? गजब बेइज्जती है यार। अरे कहाँ से आए सर आप, कौन बुक से छाप रहे हैं? अंकुश ये बॉय अपने पढ़ा के चल जाइए सर। ऐसे कर दो। हाँ सर, समझ में आता है सर, पढ़ाइए। क्या हो रहा है, ये कठिन हो रहा है। 0 होगा सर। इसमें भी नहीं करेगा, आइए तुम निकालो। क्या होगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ x ई की पावर इंटीग्रेशन क्या कर रहे यहाँ ट्वाइस कर दो तो 2ds हो जाएगा। क्या हो जाएगा तुम्हारा कितना, हैं? ए की पावर एक्सपोनेंशियल ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा।
IF हो गया, और आदिवासी बोला था। ये IF हो गया नहीं। अब उसको तुम सॉल्यूशन निकालोगे क्या होगा, y है e भाई टॉपिक कौन सा चल रहा है? आदिवासी आदिवासी अरे तुमको धनबाद का नाम बहा देंगे रे, बीआईटी सिंह खटार में तुमको पाएंगे हम। जाहिलियत का हद पार कर दियो भाई यार, गजब कर रहा है एकदम। अरे भाई नहीं कुछ बोल रहे, गजब कर रहा है सब यार। है गाना बजाएगा, निकलो यहाँ से। रे भाई तुमको बीआईटी सिंह में खेत जोतवाएंगे बोल दे रहे। बोला सुने लीनियर डिफरेंशियल भाई खेते खेते खाली टॉपिक 400 एकड़ का है भाई। एपार्ट यूज कर लेते। तो टॉपिक का क्या हमको वहां पर जो राइट हैंड साइड होगा उसमें बाई पार्ट्स ही आएगा, है ना। इन जनरल हमको वहां पर जो आएगा वो बाई पार्ट्स आएगा, इसलिए कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन आईएफ में है, तो उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट हैंड साइड जो होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड सम फंक्शन ऑफ एक्स होगा। तो इन जनरल यह जो होगा आपको बाई पार्ट्स होगा, तो बाई पार्ट्स करना होगा। बाई पार्ट्स प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं ये तुमको जानना होगा, नहीं जानते हो तो इंटरमीडिएट के सिस्टम करके देखो, वहां से पता चल जाएगा। सर वहाँ 0 होगा भाई। टॉपिक कौन सा पढ़ा रहा है? पढ़ाइए सर, आगे पढ़ाइए। अभी टॉपिक ही खोज रहे हो? हाँ खोज रहा है सब, देखने रहे। Everyone, mute yourself. हाँ ऐसे देखो, If someone is taking your class, respect him. Okay? देखो I'm observing each and everyone. मैम प्लीज म्यूट एवरीवन नहीं फ्रॉम हो रहा ना सर से, अगर नहीं हो रहा है तो आप खुद भी तो समझदार हो। मैम एक स्टूडेंट है जो मैम बहुत नौटंकी हुआ, कोई गाना बजा दे रहा है। मैम बोलिए। गाना बजा दे रहा है। मैम कोई गाना बजा रहा है। गाना बजा रहा। वही मैम वही मैम ये आईफोन जो लिख के गया है, कभी बीआईटी के नेम से एंट्री करता है, कभी ट्रेविस हेड के नाम से, कभी मिचेल स्टार के नाम से एंट्री करता है। गाना बजा रहे हो। प्लीज म्यूट कीजिए वरना सर को मैं बोल दूंगी क्लास से निकल जाएंगे। तुम लोगों को आज मैम कुछ लोगों के वजह से हम लोग का नुकसान हो रहा है ना मैम। नहीं तो प्लीज आप चुप रहिए। देखिए आप लोग चुप रहेंगे तो जो कल्प्रिट है वो दिखेगा ना कि कौन कर रहा है। देखो मैम वो दूसरा नाम से आ रहा है। ये आएगा तुम्हारा, इसको मान लो sin x ही कर ले, x स्क्वायर आ गया ना, sin x स्क्वायर, x dx आ गया और x स्क्वायर और x sin x स्क्वायर। अब इसको बाईपास करोगे, हो सकता है ये इंटीग्रेबल नहीं है यहाँ पर फंक्शन, तो इंटीग्रेट नहीं होगा तो गलत हो जाएगा। अगर ये इंटीग्रेबल है तो इसमें से इंटीग्रेशन करके निकाल लेना है, समझ रहे हो ना? यस सर। यस सर। ये एग्जांपल हमको याद नहीं है, मैं ऐसे चला आया इससे मैं लिख दे रहा हूँ कि इस तरह करना है। एक एग्जांपल सर sin x सर वहाँ पे x sin x कर लीजिए। यस सर। एक एग्जांपल बोलो लीनियर का, देख करके एक लीनियर का एग्जांपल बोलो सर। सर वहाँ पे x के प्लेस पे 1/x ले लीजिएगा ना, तो x आ जाएगा तो इंटीग्रेट हो जाएगा इसी। dy by dx minus y 10x minus y 10x y 10x y into 10x is equal to 2 sin x 2 sin x. This is linear in y. Here this is dy by dx, here y, here function of x. So this is the linear differential equation. This is linear in y. If y में फर्स्ट डिग्री, यहाँ x होगा, यहाँ y मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा? साइड में आपको केवल x का फंक्शन, तब इसको डिफरेंशियल इक्वेशन x कहेंगे। अब इसको सॉल्यूशन निकालना है तो फर्स्ट वी फाइंड द IF। IF क्या होगा? IF इक्वल टू
सुनो तब समझ में आएगा। IF इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ टाइम माइनस -10x होगा नहीं, होगा ना। p की जगह पर क्या है यहाँ, p की जगह पर यहाँ -10x है, p by होता है ना, p फैक्टर ऑफ x, इसको इंटीग्रेट करो तो क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ ये हो जाएगा log 10x log 10x होगा 10 ln sec x sin by माइनस ln sec x माइनस log sin x होता है सर। cos x होगा सर फाइनल। We believe every day should be simple. Simple to visit family. Sir, I am sharing question. It's trend. Get your money back. If it's not what you ordered. Every day should be simple to earn credit card reward points. To send money for an education and know that it gets there. It should be simple as when you check. देखिए मैम यही है अभी। Way that really मैम कोई बजा रहा है गाना। पेपल नाम से है, मैम पेपल बजा रहा है, पेपल परेशान कर रहा था। sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x माइनस cos 2x by 2 माइनस cos 2x by 2 प्लस cos 2x upon 2। This is the solution of this difficult problem. अब कोई और एग्जांपल अपने से बोलो। यार माइनस नहीं और लिखिए सर क्या बोलिए सर cos x into dy by dx x cos x into dy by dx Cot x. yes sir cot x into dy by dx Yes. plus y Y is equal to 2x cot x 2 cot x. x cot x बोल रहे हैं 2x cot x 2 cot x into x 2 cot cos x. sir x cot x 2x cot x 2 into x x cot x cot x नहीं है plus x square plus x square plus x square प्लस x ठीक है यही है। yes sir देखो इसको कैसे बनाओगे, ये मिटा देना। सर मिटाइए नहीं, स्लाइड आगे कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है, छोड़ दे, आगे कर दीजिए, स्लाइड आगे कर दीजिए। सर एक क्वेश्चन मैं शेयर करूं क्या? देखो क्या क्वेश्चन ठीक लिखा है ना, देखो इसको पहले yes sir क्वेश्चन एकदम राइट है। dy by dx इधर जो y वाला टर्म है उसको y लिखेंगे और यहाँ जो cot x से डिवाइड करेंगे ताकि हमको यहाँ पर केवल dy by dx मिले, तो यहाँ पर cot x से डिवाइड कर दिए हम है ना, और यहाँ पर भी राइट हैंड साइड में ले आएंगे तो 2x लिखे हो cot x लिखे हो और यहाँ प्लस x स्क्वायर लिखे हो। अब y डिवाइड करना है cot x से, तो देखो क्या आएगा ये इज इक्वल टू dy by dx प्लस y 10x y 10x 10x हो जाएगा is equal to 2 into y होगा और यहाँ cot x कट जाएगा 2x plus x square 10x x स्क्वायर 10x yes sir सही है 10x हो जाएगा yes sir यस सर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो स्क्वायर 10x, तो दो पार्ट ये राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट एडिशन ऑफ टू फंक्शंस है। आईएफ निकालो, इसका आईएफ तो फिर उसी तरह होगा, क्या होगा e की पावर इंटीग्रल 10x तो पहले लाइन वही होगा, क्या आएगा e की पावर इंटीग्रेशन 10x cos x डायरेक्ट भाई माइनस था इसीलिए cos x हुआ था, sec x होगा cos x हो जाएगा, sec x होगा sec x माइनस माइनस नहीं तो माइनस आ जाएगा, नहीं आएगा ना, क्योंकि यहाँ पर ऊपर पावर होगा एक मिनट निकाल
is equal to क्या आएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस log cos x आएगा ना माइनस तो अल्टीमेटली sec x होगा ना सर? माइनस ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा और हो जाएगा sec x हो जाएगा ना सर log cos x नहीं log sec x होगा सर। हाँ तो ये sec x आ ही रहा वही आए ये sec x आ जाएगा आ गया ना ठीक है हाँ यही है। ठीक है सर। sec x हो गया अब sec x जब मिल गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर आफ्टर दैट solution y into if sec x and this is equal to इंटीग्रेशन ये 2x प्लस x square कितना 10x 10x है यहाँ and into sec sec x x ये पूरे में होगा dx होगा ना अब इसको मल्टीप्लाई करके दो अलग निकालना है x अलग अलग प्लस ये आ जाएगा कितना x स्क्वायर sec x है sin by cos ऐसे आ जाएगा sin x by cos x स्क्वायर होगा यहाँ भी dx होगा और यहाँ से dx होगा तो ये तो इंटीग्रेट कर लोगे हो जाएगा बाई पार्ट से बाई पार्ट से यहाँ क्या करोगे सर उसको सर रहने 10x पहला वाला को जब बाई पार्ट से करेंगे ना cos स्क्वायर x आएगा sec x से मल्टीप्लाई किया ना cos चला गया sec का 1 by cos होगा cos कट किया sec का डिफरेंशिएशन एक लगा कुछ गलत नहीं x स्क्वायर x tan x into sec x आ जाएगा ना tan x सेकंड वाला में भी बाई पार्ट लग जाएगा सर। सर पहला वाला में बाई पार्ट ये तुम्हारा हो जाएगा नहीं लोग थोड़ा सुनो ना सर पहला वाला में बाई पार्ट लगाइएगा ना तो पहला वाला में बाई पार्ट लगाइए तो सेकंड वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा dx ये तुम्हारा हो जाएगा x स्क्वायर sec x into tan x ये आएगा यहाँ भी बाई पार्ट हो जाएगा समझे हो जाएगा ना यहाँ भी इंटीग्रेबल है ना कैंसिल हो जाएगा सर बाद में करके इसको दिखाना पहला वाला का ना एक दूसरा टर्म कैंसिल हो जाएगा सेकंड वाले से। सेकंड में कैंसिल हो जाएगा Yes, sir. इसको करोगे तो आ जाएगा पहला वाला को करें पहला वाला जब बाई पार्ट कैंसिल ये इसको बाईपास करो और इसको ऐड कर दो कैंसिल हो जाएगा पहला वाला जैसे दूसरा वाला पहला वाला को करोगे तो सेकंड का सर पहला इंटीग्रेशन होगा नहीं पहला वाला में u सेकंड को लेना होगा और वहां डिफरेंशिएशन तो माइनस हो जाएगा ये हो जाएगा सेकंड वाला का कैंसिल होगा सर। हां वो कैंसिल हो जाएगा x स्क्वायर प्लस c कैंसिल हो जाएगा इसको जब करोगे ना तो क्या आएगा ट्वाइस और यहां तुम्हारा इसको लिखोगे तो इस सेकंड से यहां पर सेकंड फर्स्ट फंक्शन होगा x स्क्वायर जो होगा सेकंड फंक्शन होगा ना ये हो जाएगा sec x into x square by 2 नहीं अब माइनस ये डेरिवेटिव ऑफ sec x into tan x और x square by 2 ये टर्म जो होगा ये जब इंटीग्रेट करोगे तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ ट्वाइस वाले से दिया हुआ ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा ये क्यों बचेगा ठीक है ये और y into dy by dx रहता है तो फिर लीनियर होता है ये सर। कौन कहाँ पर सर अगर y dy by dx होता है y into नहीं होता नहीं होता भाई तब नहीं होगा linear का the definition of linear differential equation is that the सब वेरिएबल सेपरेबल which is of first degree in y and dy by dx दोनों को एक साथ मिला करके करोगे तो वो linear नहीं होगा सर डिपेंडेंट वेरिएबल सर डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका जो डेरिवेटिव है उसका मल्टीप्लिकेशन अलाउड नहीं है ना सर। नहीं तब लीनियर नहीं होगा तब नॉन लीनियर हो जाएगा
और अगर इंडिपेंडेंट का रहेगा तब हो जाएगा। हाँ, इंडिपेंडेंट होगा तो होगा ही, तो इंडिपेंडेंट से कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पर देखो और था ना, यहाँ जो आपने जो क्वेश्चन दिया था, आपने जो क्वेश्चन दिया था यहाँ पर देखो dy by dx का क्या है, और था ना, ये फंक्शन x है, लेकिन इस टर्म हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ से इसको हटा देना है ताकि हमको केवल dy by dx मिले। लेकिन जब डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर यहाँ कोई आदमी y लिख देता है या cot y कर देता है तो ये लीनियर नहीं होता, तब ये नॉन लीनियर होता है। नहीं होता। तो y और dy by dx का प्रोडक्ट नहीं लेंगे कहीं भी, तब वो लीनियर नहीं होगा, वो नॉन लीनियर होगा, वो आपके सिलेबस में नहीं है, अलग अलग मेथड होता है, समझ गए? जैसे सर वैसा क्वेश्चन में y से अगर डिवाइड भी कर दे तो भी तो हो जाएगा ना? कहां से नहीं होगा, कैसे y का मल्टीप्लाई? अरे तो इंटीग्रेशन फैक्टर में आ जाएगा ना y। एनीवे वी आर नॉट टेकिंग द प्रोडक्ट ऑफ dy by dx एंड y। y का और dy by dx का हम प्रोडक्ट कहीं नहीं लेंगे, तब वो लीनियर नहीं होगा। लीनियर होने के लिए वो फॉर्म याद रखो, dy by dx प्लस फंक्शन ऑफ x into y इक्वल टू फंक्शन ऑफ लास्ट में फंक्शन ऑफ x होगा। अच्छा इसको देखो, definition of linear differential equation लिख लो, the differential equation which is linear in y and dy by dx means of first degree in y and dy by dx, तब वो लीनियर होगा, क्योंकि दोनों का बोलिए ना सर, तो लीनियर नहीं होगा। So pardon please. The differential equation which is of first degree in y and dy by dx, which is of first degree in y and dy by dx, दोनों में एक साथ मिलाकर लीनियर है, तो या तो dy by dx रहेगा या y रहेगा, नहीं दोनों का जब प्रोडक्ट होगा तो वो लीनियर नहीं होगा, वो नॉन लीनियर। सर बर्नौली को भी सर लीनियर में चेंज करते हैं ना सर? भाई वो तो अलग फॉर्म है ना, कि कैसे रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म ले आएंगे ना, वो तरीका अलग है। सर आप जो डेफिनेशन बताए उसका एग्जांपल से समझा दीजिए ना। बता दे रहे हैं सर हाईएस्ट डिग्री पावर पे ही, यानी हाईएस्ट डेरिवेटिव पे ही डिग्री ज्यादा 1 रहना चाहिए। हाईएस्ट डिग्री लेंगे तो नॉन लीनियर हो जाएगा ना, जैसे dy by dx का x स्क्वायर। नहीं सर, अगर सपोज d2y by dx2 है और उस पे पावर 1 है और dy by dx पे पावर 2 है तो लीनियर होगा? नहीं, तो वहां ऑर्डर भी चेंज हो गया, डिग्री भी चेंज हो गया। डिग्री कैसे चेंज होगा? डिग्री तो चेंज हो गया ना, y कर रहे हो ना, प्रोडक्ट कर रहे हो ना। सर वहाँ पे फिर से dy by dx को t मान के बना सकते हैं ना सर? dy by dx को कोई वेरिएबल t मान के बना सकते हैं ना सर? dy by dx को t कैसे? वो अलग तरीका हो सकता है। देखिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन आप पढ़ रहे हैं, इट मे बी पॉसिबल को कोई डिफरेंशियल इक्वेशन को हम होमोजेनियस से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो लीनियर फॉर्म में भी हो सकता है। एक ही कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा होगा जो आप एग्जैक्ट से भी कर सकते हैं, उसको होमोजेनियस से भी कर सकते हैं, उसको आप लीनियर से भी कर सकते हैं। तो आपको जो मेथोडोलॉजी आपको इजी लगे उससे कीजिएगा, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे डिफरेंशियल इक्वेशन जो हो वो सभी तरीके से सॉल्व हो। कोई हो सकता है कि केवल लीनियर से सॉल्व हो, कोई होमोजेनियस से सॉल्व हो, कोई एग्जैक्ट से सॉल्व हो, लेकिन कुछ पार्टिकुलर कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनको तीनों ढंग से किया जा सकता है। कोई प्रॉब्लम होता है ना जिसको 2-3 मेथड से कर सकते हैं, तो इसमें भी कुछ ऐसे होते हैं जिसको ये स्पेशल टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, सारे डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री को हम नहीं सॉल्व कर सकते हैं। कोई टाइप का फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सारे हम सॉल्व कर देंगे, सबके लिए अलग अलग तरीके हैं। ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना पड़ता है बस, जो आप पहले से कुछ जान रहे हो और एक लीनियर हमने बताया, समझे सर? ये मेथड सिर्फ लीनियर के लिए का डेफिनेशन फिर से बोल दीजिए ना सर, लीनियर का डेफिनेशन एक बार बोल दीजिए ना। द डिफरेंशियल इक्वेशन यस सर व्हिच इज ऑफ फर्स्ट डिग्री यस सर y and dy by dx independent variable and its derivative, उसको ऐसे लिख सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच इज ऑफ फर्स्ट डिग्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव। सर कॉलेज कब खुलेगा?
अरे यार वो हम उसके मालिक हैं कि हम सेक्रेटरी से पूछो ना, प्रधानमंत्री से पूछो, उसे पता चल जाएगा ना यार पहले। जिसके अथॉरिटी हम नहीं, हम कैसे बता देंगे? तो फालतू बात हो गया ना। तुम सुनना चाह रहे हो कि गप मारे? गजब टोपीबाज आदमी है सर। जो चीज हमसे पूछना है पढ़ाई के बारे में पूछो कि कैसे होगा कॉलेज। सर कंटिन्यू कीजिए आपका डेफिनेशन सर। हाँ सर, जैसे सर dy by dx का होल स्क्वायर माइनस x dy by dx प्लस y इक्वल टू 0 सर, एक बार लिखिए ना सर। अरे भाई ये डिग्री, ये फर्स्ट ऑर्डर डिग्री नहीं है, ये सेकंड डिग्री हो गया। इसके लिए अलग से पढ़ाएंगे आपको। सर dy by dx को अगर m मान ले सर वहां से, तो फिर ये फिर निकल सकता है ना सर, वो फर्स्ट मतलब कि सर इट मे पॉसिबल को उसको करने से आ जाए, है ना, वो बाय सब्स्टिट्यूशन। लेकिन वो अभी आपके लिए नहीं है। अभी जो फॉर्मेट हम पढ़ा रहे हैं उसी को पढ़ो। एक और बता रहे हैं सर, आप इसका एग्जांपल के थ्रू क्लियर कर दीजिए, ऐसे नहीं हो पा रहा उतना ठीक से क्लियर। सर टाइम हो गया। एक तुम्हारा डिफरेंशियल चलो बताएंगे इसका प्रोसेस। प्लस फंक्शन ऑफ x टू y इक्वल टू y पावर n सम फंक्शन ऑफ x। प्रणाली क्वेश्चन है सर। अब यहाँ देखो ये लीनियर है नहीं नहीं, रिड्यूस करके लीनियर बनाएं। डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या हो गया? सेकंड डिग्री हो गया। Therefore this is not linear, but this differential equation को हम रिड्यूस कर सकते हैं linear में। इसको बर्नौली इक्वेशन, स्पेशल टाइप ऑफ बर्नौली इक्वेशन कहते हैं। y से डिवाइड कर yn से डिवाइड होगा, y का पावर n से डिवाइड कर देंगे सर। ये रिड्यूस आपका अलग हमको आता है, सबको आता है। linear form, linear सही बोला। फॉर्म, यानी इसको कहते हैं बर्नौली इक्वेशन। आ गया। तुम फिर आ रहे, तुम जस्टिन बीबर का बेटा आ रहे, पटके में यहीं पे मरेगा जो धरती का, उसको नाम बोल। अच्छा ठीक ठीक, शांत शांत शांत। दूर हो, हम यहाँ हैं ऑनलाइन कर रहे, गप मारोगे तुमको समझ में नहीं आएगा, हम भी नहीं समझेंगे। कल से गाना बजा रहा ना, खत्म कर दीजिएगा। डिफरेंशियल इक्वेशंस कितने लेक्चर में खत्म कर दीजिएगा? हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन 4-5 लेक्चर में खत्म कर देंगे। 5 लेक्चर। थैंक यू सर। हम क्या करेंगे इसको? हम देखो समझने के लिए कल बताएंगे फिर। ये जो इधर जो फंक्शन ऑफ y है, y का पावर n, उसे डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा y का पावर n y by dx प्लस आ जाएगा y का पावर n -1। और यहाँ तुमको केवल फंक्शन ऑफ x है 1fx। फंक्शन ऑफ y है तो उसको डिवाइड करके x शुड बी फ्री फ्रॉम y, फंक्शन ऑफ y। इसको फंक्शन ऑफ y से फ्री कर देंगे, मतलब केवल x का फंक्शन यहाँ रहेगा। तो यहाँ y का पावर n जाके डिवाइड कर दिया। अब क्या होगा तुम देखोगे, अगर यहाँ जो y का फंक्शन दिया हुआ है उसको अगर हम पुट कर दें कोई चीज 1 by y है, तो अगर हम t पुट कर दें तो क्या आएगा बोलो? डिफरेंशिएट करेंगे? यस सर। डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा? y ये हो जाएगा -n y का पावर -n n -1 dy by dx इक्वल टू dt। dt by। अब ये जो तुम्हारा दिया हुआ है ये सर 1 by y to the power n -1 को t लेंगे ना? यस सर 1 by 1 ये लेंगे और कम बोलो 1 minus n by 1 1 प्लस हो जाएगा माइनस आ जाएगा माइनस अपन y के पावर n -2। अब आएगा, ऐसा आएगा ना?
यस सर सही है, माइनस नहीं लगा। n+1 होगा ना, माइनस टी लीजिए ना सर, हो जाएगा अच्छा से। तो पुट कर दो 1 -1 सही y होगा dx के साथ, उसको हम पुट कर देंगे t, इसका डिफरेंशिएशन करोगे -n-1 एक पावर ऐड कर दोगे, ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस n आ जाएगा, जो यहाँ आया हुआ है वही चीज यहाँ है, ये जो होगा वो यहाँ ये हो जाएगा तुम्हारा कितना -1 by -n-1 dt by dx उसको 1 -n लीजिए इनटू, और ये आ जाएगा कितना y टू द पावर n, y टू द पावर माइनस, ये चीज तुम्हारा जो दिया हुआ है ये आप चेंज हो जाएगा यहाँ कांस्टेंट के साथ, अब ये t में लीनियर हो जाएगा, देखोगे कि ये हो गया तुम्हारा कितना t dx into t, ये क्या dt by dx हो जाएगा यहाँ पर, ये t में लीनियर हो गया, जब t में लीनियर होगा तो लीनियर मेथड से सॉल्व कर देंगे, लास्ट में हम t का वैल्यू पुट कर देंगे। तो कल इस एग्जांपल को बताएंगे, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए, कोई आप जो बीएस अग्रवाल में लीनियर का दिया हुआ है उस चैप्टर को बनाइए, जो दिक्कत हो उसको कल नोट करके लाइए, ठीक है? ओके सर, आज छोड़ देते हैं। सर लीनियर इक्वेशन के पहले कौन सा टॉपिक पढ़ाए थे? किसमें? आज सर, आज लेट हो गए थे हम क्लास में, इसीलिए सर लेट हो गया था। आज डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू किए हैं, आज हमको मालूम नहीं था, तो हम आए तो वहाँ बोला गया कि क्लास है, तो हम आए देखने, हम तो कभी पढ़ाया नहीं थे यहाँ पर, तो हमको थोड़ा सा तुमको लीनियर बता दिए है ना। ओके सर, सिर्फ लीनियर बताएंगे, ये जो बताए ना बर्नौली इक्वेशन। ओके सर। डिफरेंशियल इक्वेशन में एक समझ सुनिए आप लोग, डिफरेंशियल इक्वेशन में मोस्ट ऑफ द पार्ट आप पढ़ के आए हुए हैं वहां से, है ना, +2 में। तो लीनियर और रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म और एक एग्जैक्ट दिया हुआ है, तो कल दोनों पढ़ा देंगे। कल नहीं ना है, कल है, परसों है, परसों पढ़ा देंगे। उसके बाद हमारा जो दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में के 2-3 क्लास लगेगा, बस हो जाएगा। सर मैट्रिसेस खत्म हो गया सर? मैट्रिसेस तो जो पढ़ाए थे मैडम पढ़ाई थी ना, तो खत्म कर दी होंगी। तो कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाला ही न्यू टॉपिक है ना, कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाला जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वही न्यू टॉपिक है बस, और तो कुछ नहीं है। हाँ वही नया है तुम्हारा, उसमें देखो नया और तो कुछ नहीं है। उसमें क्या दिया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड ऑर्डर। सर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी वाला भी फाइंड करना है क्या? क्या चीज है? ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी वाला भी फाइंड करने का है क्या इसमें? कहाँ दिया है, क्या सिलेबस में? सर हम पूछ रहे हैं सर, हमको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी कहाँ मिली है आपको? कहाँ है सिलेबस में? कहीं लिखा हुआ नहीं है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। मैं तो है नहीं, अपने मन से क्यों पढ़ते हो? बुक में दिखा सर, इसीलिए बोला। अरे बुक में लिखा, बुक में तो बहुत चीज लिखा हुआ है, जितना तुमको सिलेबस दिया, सिलेबस देखो, बुक नहीं देखो, सिलेबस देखो। सर बीएस ग्रेवाल का अगर एक्सरसाइज क्वेश्चंस नहीं बनता है तो उसका सॉल्यूशन कहीं पर नहीं है सर? एक्सरसाइज का जो नहीं बनता है उसका कहीं सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आपस में डिस्कस कीजिए, प्रॉब्लम आपस में डिस्कस करो, जो नहीं पढ़े वो, जो नहीं बने वो लिख करके दो, दूसरे दिन बता देंगे, चाहे उस समय होगा तो उसी समय बता देंगे, उस समय नहीं बताएंगे इसलिए सिलेबस बढ़ेगा नहीं, दे दोगे तो दूसरे दिन बता देंगे। ठीक है सर, थैंक यू। मैडम से भी पूछ सकते हैं, हमसे भी पूछ सकते हैं, है ना। जो क्वेश्चन आपको नहीं बने, फर्स्ट यू डिस्कस योरसेल्फ, आफ्टर दैट पॉसिबल नहीं हो रहा है सॉल्यूशन तो आप लिख करके दे दीजिए, भेज दीजिए मोबाइल पर, मैडम को दे दीजिए, चाहे आप क्लासरूम पर उस पर डाल दीजिए, हम लोग उसको सॉल्व करके आपको दे देंगे। सर लास्ट का 1-2 क्वेश्चंस नहीं बनता सर, तो जैसे उसमें बहुत सारे गूगल क्वेश्चन क्लासरूम में डाल दिए हैं बट कोई सॉल्यूशन नहीं किया। डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई तुमको नोट्स बुक नहीं मिलेगा, वो सीधे क्लास में पढ़ाया जाएगा, इसमें कोई नोट्स बुक नहीं होता है। मेथड जानना है, सॉल्यूशन निकालना है, अगर डिफरेंशिएशन आता है, इंटीग्रेशन आता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आता है तो आपको दिक्कत होगी, पहले उसको ठीक कर लीजिए, समझे? सर इम्प्रॉपर इंटीग्रल का नोट्स नहीं मिला था तो दिक्कत हो गया, बीएस ग्रेवाल में भी न्यू टॉपिक था। प्रॉपर इंटीग्रल था सर मॉड्यूल 2 में, प्रॉपर इंटीग्रल का नोट्स नहीं मिला। नो सर। सर बीएस ग्रेवाल में ढूंढ रहे थे, नहीं मिला सर टॉपिक, ना ही एग्जांपल तो बनाया कैसे? ठीक है, हम उसको देखते हैं, हम डाल देंगे। मैं शेयर कर दूंगी प्रॉपर इंटीग्रल, आज शेयर करती हूँ सर। नोटबुक मिलेगा सर, पीडीएफ? तो तुम लोग देखो पहले, अगर नहीं मिलता है तो उसको हम लोग डाल देंगे, तो कुछ तो है नहीं, थोड़ा सा पढ़ोगे तब नहीं, सीधे बुक तो एक आध बुक और होगा ना, लक्ष्मी पब्लिकेशन वाली बुक हो गई, इसका वाली की, उसको भी देखो, एनपी वाली है सर। हाँ एनपी वाली की बुक भी अच्छी है, उसमें देखो।
इसमें रमन्ना की बुक है, उसमें भी होगा, 2-3 बुक देखोगे तो मिल जाएगा, है ना। और हम लोग डाल देंगे जो नहीं होता उसको। कुछ पूछते हैं उसका भी कोई जवाब नहीं